करस्पॉन्डेंसेस। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा कि सेक्रेटरी को क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं व्हाइल ड्राफ्टिंग द लेटर। हमने ये देखा कि you are supposed to be in the shoes of the secretary while drafting the letters, because you should understand how to write the letters when you are writing it to the outsiders of the company. ठीक है, then we have seen the most important soul, that is the layout of the letters. आपको बोर्ड एग्जाम में जो लेटर रहेंगे that would be for 5 marks. Layout of the letter has a weightage of 2 marks. So if you draw the layout very nicely, 2 marks are in your pocket. But ये सोचोगे कि हम सिर्फ लेआउट बनाकर आ जाएंगे तो हमको 2 मार्क मिलेंगे और हम बॉडी में कुछ नहीं लिखेंगे तो भी 2 मार्क हमको मिल जाएंगे, तो लेट मी बी वेरी क्लियर दैट यू विल गेट अ ठेंगा और 0. सो लेआउट का सिग्निफिकेंस बॉडी के साथ ही है, बट इफ बॉडी एंड लेआउट बोथ आर परफेक्ट, then 2 marks for layout and 3 marks for the body of the letter. This makes a total of 5 marks. So now chapter number 6, correspondences with members. Now who are the members? Whom are we going to write the letters? We are going to write the letters to the member. Who is going to write the letter? The secretary. So secretary is going to write the letters to the members, or we can tell them as the owners of the company. When a secretary is writing a letter, there are various situations जहाँ secretary letter लिखता है, shares allot हुए, congratulations, इस पे letter लिखेगा, shares allot नहीं हुए, हमें अफसोस है, which is called as regret letter, इस पे लिखेगा, आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है. So there are various situations. Then so आपकी टेक्स्ट बुक, the 12th State Board Maharashtra State Board textbook has given you 5 situations wherein you are supposed to write or draft a letter being the secretary of the company. ठीक है, क्या सिचुएशन है पहले हम वो समझते हैं. So how many letters we are supposed to write, class? We are supposed to learn 5 letters in this chapter. Situation number 1 talks that as a secretary you have to write a letter regarding issue of share certificate. आप secretary हैं, आपको share certificate issue के regarding एक लेटर शेयर होल्डर या मेंबर्स को लिखना है. ठीक है, सेकेंड लेटर जो है, सेकेंड एंड थर्ड लेटर का जो सिचुएशन है दैट इज डिविडेंड पेमेंट. व्हाट इज द सिचुएशन? डिविडेंड पेमेंट. देन अब अगर आप डिविडेंड पेमेंट थ्रू डिविडेंड वारंट कर रहे हैं, व्हाट इज अ डिविडेंड वारंट? आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन वी राइट दिस लेटर, बट अभी के लिए इतना याद रखेंगे, जैसे एक डिमांड ड्राफ्ट होता है, जैसे हम फिजिकली किसी को पैसे देते हैं थ्रू इन द फॉर्म ऑफ चेक और डीडी, राइट? Dividend warrant is the other version of demand draft. कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, बट उसके अकाउंट में ना डालते हुए, बिकॉज कोई रीजन होगा, अकाउंट डिटेल्स नहीं होंगे, सो उसके अकाउंट में ना डालते हुए उसके घर तक डिविडेंड पहुंचाया जाएगा थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट बाय सेंडिंग अ डिविडेंड वारंट. ठीक है, सो लेटर नंबर 2 जो है वो आपको डिविडेंड पेमेंट के लिए लिखना है, बट यू आर पेइंग डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वारंट. ठीक है, लेटर नंबर 3 is again you have to write
for dividend payment only, but you are paying dividend through electronic mode. Done? So letter 1 is regarding issue of share certificate. Letter 2 situation is you are giving details on dividend payment to the shareholder or the members. One is when you are telling that आपको डिविडेंड वारंट घर तक आएगा. दूसरा है जब आप उसको बता रहे हो कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली डिविडेंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. Done? Letter number 4 is all about issue of bonus shares. What are bonus shares? It's a form of a gift which is given by the company to the existing equity shareholders. So when the company is issuing bonus shares, so this good news the secretary gives to the shareholders कि आपको छप्पड़ फाड़ कर bonus shares मिल रहे हैं. And last but not the least, there may be certain complaints, there may be certain grievances, or there may be certain queries. So letter number 5 is a reply to a shareholder's query. shareholder ने एक सवाल, एक query generate की है. query है regarding low rate of डिविडेंड कि भैया क्यों कंपनी ने डिविडेंड इतने कम रेट पे डिक्लेयर किया. सो ये जो क्वेरी है ये किसकी है? शेयर होल्डर की. एंड हु इज गोइंग टू रिप्लाई टू इट? यस, ऑल द लेटर्स विल बी रिप्लाइड बाय द secretary of the company. So who are these? These are the shareholders. Here I would like to add something. हमने दो टाइप के शेयर होल्डर्स पढ़े हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. सो एज अ स्टूडेंट देयर माइट बी क्वेश्चन इन योर माइंड कि हम ये जो लेटर्स हैं ये किसको लिख रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. सो क्लास, आपको जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, the question in your exam is a very simple question of one line. For example, draft a letter of issue of share certificate. बस आपको क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं दी जाएगी कि आपको इस कंपनी का सेक्रेटरी बनना है. That means you will not be given any name of the company. You will not be given what is your name. You will not be given any other details. You have to assume everything and write. Then by default अगर हम शेयर होल्डर्स वर्ड सुनते हैं तो आपको by default यही assume करना है कि आपको ये सारे लेटर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही लिखने हैं. Yes, issue of share certificate to a shareholder. मन में आप सोचेंगे इक्विटी शेयर होल्डर. डिविडेंड पेमेंट टू अ शेयर होल्डर, मन में आप सोचेंगे टू अ इक्विटी शेयर होल्डर. बोनस शेयर्स we all know are issued only and only to existing equity shareholders. तो यहाँ तो question of preference share आता ही नहीं है. And last but not the least, reply from a shareholder है. ना बोर्ड में दिया है, ना बुक में पूछा गया है, ना दिया है. आपको अज्यूम करना है कि you are writing letter to a equity shareholder. ठीक है? Only thing which you need to remember is apart from this letter, apart from bonus shares, don't mention the word equity shareholders. ठीक है? सिर्फ बोनस शेयर के लेटर में आप इक्विटी शेयर होल्डर वर्ड यूज करेंगे. उसके अलावा आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ लेटर में ये वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ यूज करना है द वर्ड शेयर होल्डर. Then so
5 situations on the board. These 5 situations we will be doing it one by one. Maybe I will be doing it one very nicely with you and the other would be a homework for you. So be attentive, be very clear in getting the concepts clear. Okay? So without wasting time, let's move on to the first letter, that is issue of share certificate. Okay class. So as you can see on the board, we are going to write the first letter, that is issue of share certificate. You are supposed to draw the layouts on your own, the ones which we have already discussed. आप दो पेज के बाद में 5 लेआउट्स बनाकर रखेंगे. लेआउट्स में आप डियर सर तक, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस, CIN नंबर, 2 कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, रेफरेंस नंबर. हम रेफरेंस नंबर से लेते हैं. उसके बाद में डेट, आप डेट आज का डालेंगे. उसके बाद में to whom you are writing the letter, then जो भी है उसका नाम, उसका एड्रेस, subject. What is the subject? This is the question, issue of share certificate. So what will be the subject? As the question, issue of share certificate. Then after this I am leaving a line and dear sir, I am writing or starting my letter. मुझे पता है कि मेरे सारे लेटर्स का जो स्टार्टिंग लाइन है वो कॉमन है. कौन सा है वो लाइन? सब बोलेंगे. I am directed by the board of directors. I am writing a short form, you need to write the full form. I am directed by the board of directors to inform you that. यहां तक लिखा था. ठीक है. अब पहले इस लेटर का सिचुएशन समझो. यहां तक आपको लिखकर रेडी रखना है. ठीक है. अब इस लेटर का सिचुएशन समझो. व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द लेटर? सिचुएशन ऑफ लेटर ये है कि हम सबको पता है कि शेयर्स के लिए एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड for getting the shares of the company, he has to apply. Done. So सबसे पहले आता है application. किसी X बंदे ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया. शेयर्स के अप्लाई के बाद में उस बंदे को शेयर्स अलॉट होते हैं, यानी अप्लाई करना, उसके बाद शेयर्स अलॉट होना. शेयर्स अलॉट होने के 2 मंथ्स के अंदर शेयर्स अलॉट होने के 2 मंथ्स के अंदर उस इन्वेस्टर को, जो कि अब शेयर होल्डर बन चुका है, उससे उसका शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए. दिस इज द रूल. राइट? आई रिपीट. You apply for the shares. If the shares get allotted to you, then within 2 months from the date of allotment, you are supposed to send the share certificate. You as a secretary of the company is supposed to send the share certificate to the person. Then अब ये जो situation है यहाँ पर ऐसा है कि एक बंदा है राम यादव, जिसका नाम हमने यहाँ लिखा है, टू मिस्टर राम यादव. इस बंदे ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसे शेयर्स अलॉट भी हो चुके हैं. नाउ दैट पर्सन नीड्स अ शेयर सर्टिफिकेट and that needs a physical share certificate, and so he is
writing an application to the company asking for a physical form of share certificate, a materialized form of share certificate. Is the situation very clear? Mr. Ram Yadav has been allotted the shares of the company. After allotment, Mr. Ram Yadav wants physical share certificate for his holding of shares. So he is writing a written application. He is writing a written application to the company wherein he is asking for share certificate. ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखो कि जब तक आपको कोई चीज का रिटन एप्लीकेशन नहीं मिलता आप उस चीज पे जवाब नहीं देंगे। तो यहाँ राम यादव ने कंपनी को एक रिटन एप्लीकेशन दिया है wherein he is asking for the share certificate, a material form of share certificate. Now, on receiving this application, it's the duty of the secretary of the company to give him a proper reply and to tell him कि उसको share certificate कितने दिन में मिलेगा। Got it? I repeat, application मिलने पर share कंपनी का सेक्रेटरी रिप्लाई देगा जिसमें वो लिखेगा कि आपको मिस्टर राम यादव को शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन में मिल जाएगा। दैट मीन्स इस लेटर के साथ में आप शेयर सर्टिफिकेट नहीं भेज रहे हैं। You will be sending the share certificate within 10 days, within 15 days, but you have to inform Mr. Ram Yadav that we have received your application and we will be sending you the share certificate within so and so dates. And in that letter, share certificate का क्या नंबर रहेगा वो सब आपको डिटेल इसमें डाल देना है। ठीक है, so Ram Yadav, who is Ram Yadav? The shareholder. What has he asked for? He has asked for share certificate. So उसने application भेजा। अब उसने जो application भेजा, उस application को भी हमें एक assume कर एक नंबर देना है। For example, your application number 028. ठीक है, so what is this? This is the application number. आपको assume करना है just to make your letter more specific. तो आपने references दे दिए। So आपका application number 028, राम यादव का application number 028 कंपनी को मिला। ठीक है, इस हिसाब से हम letter लिखेंगे। Done. So यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि सेक्रेटरी किसको लेटर लिख रहा है? राम यादव को। किस बारे में लिख रहा है? कि आपने जो एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन का नंबर क्या है? 028, जिसमें यू हैव आस्क्ड फॉर शेयर सर्टिफिकेट। सो योर शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू योर रजिस्टर्ड एड्रेस विद इन so and so days. And the details of the letter are as follows. Done? नहीं समझा तो अब जब हम लिखेंगे शायद समझ जाएगा। So I am directed by the board of directors to inform you that your application number, ठीक है, किसका एप्लीकेशन नंबर? योर यानी राम यादव। क्या है उसका एप्लीकेशन नंबर? हमने लिखा है 028। I am directed, who am I? I am the secretary. I am directed by the board of directors to inform you that your application number 028 regarding किस regards में था? Regarding issue of share certificate has been received by the company. हमको आपका एप्लीकेशन मिल गया।
received by the company. डन, यानी अगले बंदे को एक थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि मेरा एप्लीकेशन इनको मिल गया। अब नेक्स्ट लाइन में कंपनी क्या एक्शन ले रही है वो आपको बताना है। तो एक बार ये सेंटेंस पढ़ लेंगे। आई एम डायरेक्टेड by the board of directors to inform you that your application number, very important, regarding what? Regarding issue of share certificate has been received by the company. ठीक है? Now, as per your request, तुमने रिक्वेस्ट किया तो उसका रेफरेंस दे दो। एज पर योर रिक्वेस्ट द शेयर सर्टिफिकेट, प्लीज राइट डाउन फुल फॉर्म, विल बी डिलीवर्ड एज पर योर रिक्वेस्ट। आपने रिक्वेस्ट किया कि मुझे शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाएगा। कहां हो जाएगा? विल बी डिलीवर्ड टू योर रजिस्टर्ड एड्रेस। जो एड्रेस आपने कंपनी के पास रजिस्टर किया है, जहां आप जो लिखोगे उस एड्रेस पे शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाएगा। कितने दिन में? विदिन 15 days, विदिन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर। यहां जो भी आपने डेट डाला है उस डेट से 15 दिन में, 15 डेज में आपको आपका शेयर सर्टिफिकेट आपके घर पर घर पहुंच सेवा के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है? आई रिपीट, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन नंबर regarding what? Regarding issue of share certificate has been received by the company. हमको मिल गया। अब हमने क्या किया? As per your request, the share certificate will be delivered. हम क्या एक्शन ले रहे हैं? हम आपको शेयर सर्टिफिकेट पहुंचा रहे हैं। कहां पहुंचा रहे हैं? To your registered address. कितने दिन में? Within 50 days, 15 days from the date of this letter. Now, ये जो शेयर सर्टिफिकेट है यह पहुंचा तो दे रहे हैं, बट कैसे पहुंचा रहे हैं? तो यहाँ पर एक चीज का मेंशन होना बहुत जरूरी है, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, राइट? सो एज पर योर रिक्वेस्ट the share certificate will be delivered to your registered address within 15 days from the date of this letter. Full stop. The share certificate will be sent by registered post. ठीक है? यहां पर आपने उस शेयर होल्डर को, राम यादव को, उसके डिटेल्स दे दिए कि आपको 15 दिन में मिल जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू मिल जाएगा एंड सो ऑन। देन अब आपको जो शेयर सर्टिफिकेट यू आर सेंडिंग आफ्टर 15 डेज और विद इन 15 डेज उस शेयर सर्टिफिकेट के डिटेल्स देने हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे, I need to rub the board, so if you can write down this much, please write down quickly. Quickly write down.
very important things. So don't forget to write down the application number. Don't forget to write down 15 days. Don't forget to write down registered post. Don't forget to write down registered address. These are the keywords which should be there in your letter, where the checker will be giving you marks on these keywords also. Right? ये होने के बाद हमको second para start करना है. So I am just rubbing the board because of space constraints. आप लोग कंटिन्यू करेंगे अगर आपके अगर आपके पास स्पेस है तो. So don't leave the space if you have. Done. So हमारा लास्ट वर्ड था through registered post. उसके बाद आप नेक्स्ट पैरा, सपोज यहाँ आपका registered post खत्म हुआ. So next para you will write down the details of share certificate. जो share certificate आने वाला है, issued to you are as follows. आपको जो शेयर सर्टिफिकेट 15 डेज में मिलने वाला है उसके डिटेल्स क्या है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ नेक्स्ट इज very important part of the body of the letter, which is a tabular representation. Sometimes the checker doesn't even read the letter. The checker checks your table because the table gives a brief snapshot of what is written in the letter, and it also tells the checker कि लिखने वाले की अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर है, क्योंकि टेबल में आपको पूरा लेटर का जूस लिखना है. ठीक है, क्या लिखना है? बहुत सिंपल, हम देखते हैं. शेयर सर्टिफिकेट जो होता है, शेयर सर्टिफिकेट के जनरली जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आगे वाले बंदे को पता होने चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. सो जब हम शेयर सर्टिफिकेट अगर ड्रॉ करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शेयर सर्टिफिकेट नंबर, कौन से नंबर का शेयर सर्टिफिकेट आप उस बंदे को दे रहे हैं. हाउ मेनी शेयर्स, आप कितने शेयर का शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और डिस्टिंक्टिव नंबर. सपोज 100 शेयर्स है तो फ्रॉम विच नंबर टू विच नंबर शेयर्स आर बीइंग अलॉटेड टू दिस पर्सन. एंड इस शेयर सर्टिफिकेट की जहां पर एंट्री होती है, एंट्री कहां होती है? रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स में. वी ऑल नो कि सारे शेयर होल्डर्स, सारे मेंबर्स की एंट्री रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होती है. सो जिस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जिस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के जिस पेज पे इस शेयर होल्डर की डिटेल्स रहेगी उसको हम कहते हैं फोलियो नंबर. आई रिपीट, शेयर सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं? जो कि रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है. रजिस्टर्ड शेयर होल्डर यानी ये पूरे के पूरे डिटेल्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखे होंगे. इस शेयर होल्डर की डिटेल रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के कौन से पेज नंबर पर लिखी है उसको हम कहते हैं फोलियो नंबर. I repeat, what is folio number? It is the page number of register of members on which the details of that specific shareholder is written. ठीक है? That means इस बॉक्स में आपको folio number लिखना होना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट नंबर लिखा होना चाहिए, कितने शेयर्स आपने अलॉट किए हैं
टाइटल ऑफ होल्डर ऑफ ओनरशिप उस बंदे के पास है वो, एंड किस नंबर से किस नंबर तक के आपने शेयर्स अलॉट किए, ये इस लेटर इस टेबल में आना चाहिए, ठीक है। सो नो प्रॉपर सीक्वेंस, आप आगे पीछे कर सकते हो। सो पहला कॉलम रहेगा फोलियो नंबर, सेकेंड कॉलम रहेगा स्पीकर शेयर सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। थर्ड कॉलम रहेगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, आपने कितने शेयर्स उसको अलॉट किए हैं। सो हो गया फोलियो नंबर, कॉलम नंबर 2 शेयर सर्टिफिकेट नंबर, कॉलम नंबर 3 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कौन से नंबर से कौन से नंबर तक के शेयर्स अलॉट हुए हैं उसको हम कहते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। आई थिंक इसके अलावा कुछ लगेगा नहीं, तो अभी फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। सो फोलियो नंबर यू कैन राइट फ्रॉम योर ओन नंबर। सो मुझे ये नंबर पसंद है तो मैंने ये लिख दिया। शेयर सर्टिफिकेट नंबर भी आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए 100 ही लेती हूँ, आप भी 100 ही लीजिए क्योंकि जितना सिंपल फिगर उतना इजी। सो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड आपको 100 हुए हैं। अब आपको लिखना है कि कहां से कहां तक के शेयर्स अलॉट हुए हैं। डन। सो बहुत सिंपल सा ट्रिक है। अगर हम सोचते हैं कि पहला शेयर मुझे अलॉट हुआ है, सो 001 से लेकर 100 शेयर्स है तो 001 से लेके कितना होगा 100। बट शेयर सर्टिफिकेट नंबर देखकर लगता है कि आप पहले शेयर होल्डर तो नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके सामने में कोई भी एक डिजिट लगा देना है। सो आपको जो शेयर्स अलॉट हुए हैं वो अलॉट हुए हैं 5001 से लेके 5100 तक। वेरी क्लियर, बहुत सिंपल, ठीक है। सो हमारे जो भी डिटेल्स लगते हैं जो शेयर सर्टिफिकेट में इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने इस टेबल में डाल दिया। सो जिस बंदे को ये लेटर मिलेगा उसको देखकर समझ जाएगा हाँ भैया मुझे शेयर सर्टिफिकेट नंबर ये आएगा, तो कंपनी ने 100 शेयर्स दिए हैं और उसका डिस्टिंक्टिव नंबर ये टू ये है, रोल नंबर ये टू ये है। डन। आफ्टर दिस टेबल, now whatever detail you were supposed to give to the person you have given, so after this table you just have to give a final finishing line, a very humble polite line which says it shall always be our endeavor। endeavor word मुझे टफ लग रहा है मैम, सिंपल सा वर्ड दो। so it shall always be our pleasure। जितना वर्ड आपको सिंपल यूज करना है आप उतना सिंपल वर्ड यूज करेंगे, राइट। सो it shall always be up to provide the best of our services to you at all times। यानी आपने एज ए सेक्रेटरी कंपनी का गुड इमेज पोर्ट्रे कर दिया बाय राइटिंग दिस लेटर कि हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं और हम हमेशा आपको अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। डन। ये लिखने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल एंड ऑफ द लेटर। वी ऑल नो हम इस तरफ लिखेंगे थैंकिंग यू, ठीक है। सेम लाइन एग्जैक्टली ऑपोजिट, यू राइट डाउन
Yours faithfully, comma, for. Why do we write for? When you are signing on behalf of someone. So we are signing on behalf of the company. So company का नाम जो आपने लेटर हेड में स्टार्ट में लिखा, स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लीव थोड़ा सा लाइन एंड राइट डाउन साइन, नेम ऑफ द पर्सन, फॉर एग्जांपल राहुल कुमार. Who is Rahul Kumar? You are Rahul Kumar. Yes, and what is your designation? Your designation is company secretary. Done. अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, we will write common seal of the company, and with this I will end my letter. Don't forget to draw this line. You will end your letter. अब letter के साथ में are we attaching or are we enclosing something? So in this case, no. You are not enclosing the share certificate. So you are not attaching something. So you need not write ENCL. What is ENCL? Enclosure. आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट फ्यूचर आगे के लेटर्स में जब आप लेटर के साथ कोई डिविडेंड वारंट या कोई एंक्लोजर अटैच करेंगे तो आपको वो लिखने की जरूरत रहेगी. सो दैट टाइम यू कैन मेंशन enclosure. Right now you will not mention enclosure, and with this we end up with the first letter of your chapter. We have given more than required time to one letter because I wanted you to go step by step. Now, with the hope that you have understood the formation, the layouts and the body of the letter, so we will move thoda sa fast in the upcoming letters. With this, that's all for the day, and have a good day. Bye-bye.